السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آج ہم کیا سیکھیں گے؟ کلمات ہی سیکھ رہے ہیں نا ہم۔ تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں کلمہ کی، تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ کلمہ کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا منتہا، یہ بتائیں کہ میرے پیچھے کوئی آواز تو نہیں آ رہی آپ کو؟ کوئی ساؤنڈ، کوئی شور باتوں کا؟ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ۔ تو جب بھی ہم لفظ کلمہ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آنی چاہیے کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کلمہ ہوتا کیا ہے؟ کوئی بھی لفظ ہے نا، کوئی بھی لفظ اسے کہتے ہیں کلمہ، یعنی لفظ کو عربی میں بولتے ہیں کلمہ۔ تو کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ہوتا ہے، یا پھر وہ فعل ہوتا ہے، یا پھر وہ کلمہ حرف ہوتا ہے۔ تو اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں فعل۔ فعل میں جب ہم نے دیکھا تو فعل ہم نے 4 طرح سے دیکھا تھا کہ فعل کی 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر اور نہیں، جس میں سے فعل ماضی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا الحمدللہ۔ آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع۔ تو آئیے دیکھتے ہیں فعل مضارع کون سا فعل ہوتا ہے۔ فعل مضارع ایسا فعل ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام اس وقت یعنی موجودہ وقت میں ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا۔ یعنی فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرے۔ کیا مطلب؟ فعل ماضی جو ہوتا ہے، ماضی پاسٹ، جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا۔ لیکن جب ہم مضارع کی بات کرتے ہیں، مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، فعل حال اور فعل مستقبل، یعنی پریزنٹ اور فیوچر۔ پریزنٹ موجودہ زمانہ، فیوچر آنے والا۔ تو مضارع سے دونوں ہی زمانے مراد لیے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی، یعنی پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی۔ جیسے مثال آپ کے سامنے ہے، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا جب ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں پریزنٹ کا، تو اردو فقرات کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تاہوں، تے ہیں وغیرہ الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم فیوچر کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو فیوچر میں اردو فقرات کے آخر میں گا، گے، گی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تا ہے، تی ہے، تاہوں، تے ہیں وغیرہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ فعل حال ہے، گا، گے، گی سے پتہ چلتا ہے یہ فعل مستقبل ہے۔ حال سے مراد پریزنٹ، مستقبل سے مراد فیوچر، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع میں یہ 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سلائیڈ جو ہم ہر سبق میں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کسی بھی فعل کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے۔ کسی بھی فعل والے کلمات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان 3 باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ کیا کیا؟ تعداد، جنس یا اور کلام کے اجزاء۔ تعداد میں کیا؟ واحد، تثنیہ، جمع، جنس میں مذکر یا مؤنث، کلام کے اجزاء میں غائب، مخاطب یا متکلم۔ جیسے ہم نے ماضی میں پڑھا تھا نا، فعل ماضی میں واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، ہے نا۔
इसी तरह फेल मुजारे में भी हमने ये सब सीखना है। तो अब देखते हैं हम कि फेल मुजारे का पता कैसे चलता है कि ये कलिमा मुजारे, क्योंकि हमने माजी भी पढ़ा ना, अब हम मुजारे भी पढ़ेंगे। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेल मुजारे है या फेल माजी है? तो फेल माजी की तो हमें अच्छी पहचान हो गई, आज हम फेल मुजारे की पहचान देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फेल मुजारे की अलामात होती हैं। ठीक है, ये आपके सामने फेल मुजारे की 4 अलामात हैं, या, ता, आ, ना। ठीक है, या, ता, आ, ना। फिर आप ये देखिए, मैंने हर सर्कल में हर एक अलामत को 2 बार लिखा, 2-2 हरकत के साथ, मतलब या जबर के साथ भी है, या पेश के साथ भी। फिर ता जबर के साथ भी है, ता पेश के साथ भी है। इसी तरह आ जबर के साथ भी है, आ पेश के साथ भी है। ना जबर के साथ भी है और पेश के साथ भी है। इसका मतलब है फेल मुजारे के ये जो 4 अलामात हैं, या, ता, आना, कभी ये जबर के साथ आती हैं और कभी पेश के साथ। क्या मतलब? ये कोई फेल ऐसा होता है मुजारे का जिसमें अलामत मुजारे पर जबर होती है, और कोई फेल मुजारे ऐसा होता है जिसमें अलामत मुजारे पर पेश होता है। ठीक है, या, ता, आ, ना। आज हम इंशाअल्लाह ताला ये चंद अलामात सीखेंगे जिससे हमें कुरान के बहुत से कलिमात सीखने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो हमने जो 4 अलामात पीछे पढ़ी है ना, उनका मजमुआ होता है अतईन। अतईन, आ, ता, या, ना, अतईन। ठीक है, आ, ता, या, ना, इनको जब हमने जमा किया, मजमुआ बनाया, तो ये बन गया अतईन। अतईन याद रखने के लिए है कि अतईन में जो हरूफ आ रहे हैं ना, यही हरूफ फेल मुजारे की अलामात हैं। ठीक है, आता या ना। फिर हम देखते हैं इसमें या किसके लिए इस्तेमाल होती है। या अलामत इस्तेमाल होती है गायब के सीगों के लिए, और ता किसके लिए? ता मुखातब के सीगों के लिए, और इसी तरह आ और ना ये मुतकल्लिम के सीगों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये आपने ये बातें अब याद रखनी है। ठीक है, या गायब के सीगों के लिए, ता मुखातब के सीगों के लिए, आ और ना मुतकल्लिम के सीगों के लिए। इस तरह हमारी 4 अलामात पूरी हो गई। ठीक है, मजीद हम आगे देखते हैं जी। जब कोई ऐसा कलिमा हो जिसके शुरू में या हो, ठीक है, ये बात आपने गौर से सुननी है। जब कोई कलिमा आप ऐसा देखें कुरान पाक में जिसके शुरू में या है और आखिर पर पेश आ जाए, ठीक है, शुरू में या आखिर पर पेश आ जाए, तो वो सीगा हमारे पास होता है वाहिद मुजक्कर गायब फेल मुजारे। वाहिद मुजक्कर गायब फेल मुजारे। ठीक है, जैसे यफ़आलू, शुरू में या आ रही है ना, यफ़आलू शुरू में या और आखिर पर पेश आ रहा है, यफ़आलू। अब ये फेल मुजारे है। फेल मुजारे में 2 ज़माने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तकबल। फिर हम इसका माना भी 2 दफ़ा ही लगाएंगे, एक दफ़ा प्रेजेंट में, एक दफ़ा फ्यूचर में। तो क्या माना होगा? फ़ाला का माना था करना, है ना, तो अब यफ़आलू, वो एक मर्द करता है, प्रेजेंट। यफ़आलू, वो एक मर्द करेगा, ये है फ्यूचर। यानी हाल और मुस्तकबल दोनों ही माना इसमें आते हैं। तो ऐसा कलिमा जिसके शुरू में या हो, ठीक है, और इस या पर जबर भी हो सकता है, पेश भी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा अलामत मुजारे कभी जबर के साथ होती हैं, कभी पेश के साथ। ठीक है, या हो शुरू में और आखिरी हरफ पर पेश आ जाए, वो हमारे पास है वाहिद मुजक्कर गायब फेल मुजारे। ठीक है, फिर ऐसा कलिमा जिसके शुरू में या हो और आखिर में अलिफ नून, ये नून जेर वाला, ठीक है, इसका साउंड पढ़ने में बनता है आनी। ठीक है, ऐसा कलिमा जिसके शुरू में या आ जाए और आखिर में अलिफ नून जेर, और पढ़ते वक्त ये जो अलामत अलिफ नून की है ना, ये आनी का साउंड दे रहा हो, तो वो सीगा हमारे पास आता है तस्निया मुजक्कर गायब फेल मुजारे। जैसे मिसाल आपके सामने, यफ़अलानी, शुरू में या आ रही अलामत मुजारे, ठीक है, आखिर में अलिफ नून मकसूर है, तो क्या बन गया ये यफ़अलानी। देखिए आखिर में आनी का साउंड आ रहा है ना,
यफ़अलानी, तो ये हमारे पास तस्निया मुज़क्कर गायब फेल मुज़ारे, तो माना क्या होगा, वो दो मर्द करते हैं या वो दो मर्द करेंगे। करते हैं प्रेजेंट है यानी फेल हाल, करेंगे मुस्तकबल यानी फ्यूचर। फिर उसके बाद अगर कोई कलीमा ऐसा हो जिसके शुरू में या आए, आखिर में वाऊ नून मफ्तूह, नून मफ्तूह से मुराद नून पर जबर हो, फतहा हो, ठीक है। वाऊ नून और साउंड बनता है ये ऊना, शुरू में या हो और आखिर में वाऊ नून मफ्तूह, तो ये सीगा हमारे पास बनता है जमा मुजक्कर गायब। जैसे मिसाल आपके सामने, यफ़अलून, शुरू में क्या आ रही है या, आखिर में वाऊ नून है ना, तो यफ़अलून, ऊना का साउंड आ रहा है ना इसमें, तो ये हमारे पास जमा मुजक्कर गायब फेल मुजारे है। फेल मुजारे कैसे है, ये हमें ये पता चला, इसमें शुरू में अलामत मुजारे या आ रही है। जमा मुजक्कर कैसे है, वाऊ नून फेल मुजारे में जमा मुजक्कर की अलामत है। अब ये गायब है, मुखातब है या मुतकल्लिम, तो हमने पढ़ा कि या गायब के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह ये जमा मुजक्कर गायब फेल मुजारे, माना क्या हुआ, वो सब मर्द करते हैं या वो सब मर्द करेंगे, ठीक है। तो आपने गौर किया, ये दोनों सीगे तस्निया और जमा के ना बने तो वाहिद से ही है। देखिए जरा हम पीछे को आते हैं ना, यफ़अलू, ठीक है, यफ़अलू, इसी के आखिर पे हमने अलिफ नून बढ़ा दिया, तो आपको याद है ना अलिफ से पहले हमेशा जबर होता है, तो इसलिए पेश जो था ना, अलिफ की वजह से इस पे जबर आ गई, तो यफ़अलानी बन गया। फिर जब देखिए साथ साथ देखते भी जाते हैं, ठीक है, अलिफ नून लगाया तो अलिफ से पहले हमेशा जबर होता है, फिर ही अलिफ पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ये यफ़अलानी बन गया। इसी तरह यफ़अलू था, यफ़अलू, ठीक है, तो आखिर में उसके वाऊ नून बढ़ा दिया, तो ये यफ़अलूना बन गया, ठीक है। मजीद ये हैं कुछ अफ़आल कलिमात, यज़रिबु, अब देखें शुरू में या आ रही है, आखिर में पेश, तो ये सीगा हमारा वाहिद मुज़क्कर गायब फेल मुजारे, यज़रिबु। माना क्या था इसका, अगर ये ज़ाराबा था तो इसका क्या माना था, उसने मारा। अब यज़रिबु फेल मुजारे में दो जमाने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तकबल, तो यज़रिबु का माना हो गया वो एक मर्द मारता है या वो एक मर्द मारेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं वो एक मर्द मारता है, इसकी अरबी बताएं, आप यही बताएंगे यज़रिबु। अगर मैं कहूं वो एक मर्द मारेगा, इसकी अरबी बताएं, तो भी आप यही कहेंगे यज़रिबु, ठीक है। हाँ जी मुंतहा बेटे, आप कीजिए माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, अब आप ये बताइए यज़रिबु का तस्निया क्या होगा, यज़रिबानी। इसका जमा क्या होगा। यज़रिबूना। हाँ यज़रिबूना, शाबाश। अब आप मुझे ये बताइए यनसुरु ये कौन सा फेल है। यनसुरु कौन सा फेल है? फेल हम्म माजी है। फेल, माजी है। अच्छा नहीं नहीं, फेल मुजारे है। फेल मुजारे कैसे पता चला आपको कि ये फेल मुजारे हैं। स्टार्ट में जबर लग रहा है और आखिर में इसके पेश आ रही है, तो ये स्टार्ट में वाहिद। जबर, स्टार्ट में जबर इसीलिए फेल या मुजारे। लग रहा है, सॉरी सॉरी, या लग रहा है। शुरू में अलामत मुजारे में से या आ रही है और आखिर में पेश, तो ये सीगा कौन सा है। वाहिद मुजक्कर गायब का। हाँ देखें बेटा, शुरू में या और आखिर में पेश, ये इस बात की निशानदेही करेगा कि ये सीगा वाहिद मुजक्कर गायब है। फेल कौन सा है, फेल मुजारे है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके शुरू में अलामात मुजारे में से या आ रही है, ठीक है। जो आखिरी ठीक। की अलामात है ना, आखिर की अलामात बेटा ये सीगे को बताएंगी, फेल को नहीं, ठीक है। ठीक है। शाबाश। अब आप बताइए वो दो मर्द मदद करते हैं, इसकी अरबी क्या बनेगी। यनसुरानी। शाबाश। वो सब मर्द मदद करते हैं।
यंसुरूना। गुड, ठीक है, शाबाश। यंसुरूना, सही। अब एक लफ्ज है यस्माउ, है ना, यस्माउ। आप इसका बनाइए, यस्माउ का तस्निया मुजक्कर गायब सीगा बनाएं। यस्माउ से तस्निया मुजक्कर गायब। यस्माआनी। सही। और जमा मुजक्कर गायब। यस्मा यस्माऊना। यस्माऊना, सही। इसका माना क्या है यस्माऊना का? यस्माऊना वो सब मर्द सुनते हैं या सुनेंगे। ठीक है, शाबाश। वो सब मर्द सुनते हैं या सुनेंगे। गुड, माशाअल्लाह। इसका मतलब है कि आपको इसकी समझ आ गई है। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। जज़ाकिल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी सबा, आप माइक ओपन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, जी सबा, आपको समझ आया सबक की? जी मैम। मैम एक क्वेश्चन है हाँ। कि ये जो या आएगा शुरू में, इस पे हमेशा जबर ही होगी? अब मैंने पीछे बताया था ना, पेश भी हो सकती है, ठीक है। या इस पर जब अलामाते मुजारे जो होती है ना, उन पर जबर भी हो सकती है, उन पर पेश भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता जैसे ये यशकुरु है ना, हम इसको युशकुरु भी पढ़ लें, यशकुरु भी नहीं। वो जैसे है वैसे ही। वैसे ही कोई फेल ही ऐसे होंगे जिनके शुरू में अलामते मुजारे पर पेश हो, और कोई फेल ही ऐसे होते हैं जिनके शुरू में अलामते मुजारे पर जबर होता है, ठीक है। जी जी। हम्म अब आप ये बताइए, यशकुरु ये कौन सा कलीमा है? ये फेल मुजारे। फेल मुजारे। आपको कैसे पता चला कि ये फेल मुजारे हैं? क्योंकि शुरू पे या है और उस पे जबर है और आखिर पे पेश है। देखें, जो आखिर की अलामात होती हैं बेटा, वो सीगे को शो करती हैं, ना कि फेल को, ठीक है। अब ठीक है। देखें, अगर यहाँ पर हो यशकुरानी, तो क्या ये फेल मुजारे नहीं होगा? क्योंकि अब होगा। यशकुरानी के तो आखिर में पेश नहीं है ना। जी। हाँ, जो ये सीगा आखिर की अलामतें हैं वो सीगे को डिफाइन करती हैं, जो शुरू की अलामत होगी वो फेल को डिफाइन करती जी। है। अलामतें मुजारे हमने कितनी पढ़ी हैं? अलामाते मुजारे हमने चार 6 पढ़ी। पढ़ी है। चार पढ़ी है ना, जिनको हमने कहा अतईन, अतईन, जी आता या ना, ठीक है। कोई बात नहीं, आज अभी पहली बार हम पढ़ रहे हैं ना, तो कोई मसला नहीं है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और भी क्लियर हो जाएगा। अब आप ये बताइए, यशकुरु इसका माना क्या है? इसका मानी नहीं मुझे इसका पता। ये लश्कर से है क्या? हाँ, नहीं नहीं, देखिए, हम उर्दू में बोलते हैं अच्छा 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 अच्छा, शुक्र अदा शुक्र अदा करना। कर। जी जी। यशकुरु। हम्म यशकुरु वो एक मर्द शुक्र अदा करता है या वो एक मर्द शुक्र अदा करेगा? गुड, जबरदस्त। और अगर ये जुमला हो, वो सब मर्द शुक्र अदा करेंगे, तो इसके लिए भी क्या बनाएंगे हम? यशकुरुना। यशकुरूना, जबरदस्त। वो दो मर्द शुक्र करते हैं, इसकी अरबी क्या बनाएंगे हम? यशकुरानी। यशकुरानी, ठीक है, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जजाक। आपका, जजाकिल्ला। अब ये कुछ आयात मैंने रखी हैं, इसमें से आप मुझे बताएंगे। अच्छा, ये गर्दान मैंने ये बना दी, ठीक है। यानी जितना आज हमने पढ़ा ना, उसी हिसाब से इस तरह से हमने इसको तैयार करना है। जितने भी फेल थे ना ये पिछली स्लाइड में, कोशिश करनी है आपने दो तीन लेके, तो इस तरह से उनका टेबल बना लें, ठीक है। इसमें जिन्स भी आ गई, कलाम के अज्जा में से भी आ गया गायब, और तादाद में से भी, ठीक है। यजरिबू, यजरिबानी, यजरिबूना, यजहबू, यजहबानी, यजहबूना, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना। तीन तो मैंने लिख दिए, ये तीन छोड़ के आपने कोई और तीन ले लेने हैं, ठीक है। जी। और कुछ ये आयात हैं, इसमें से आप बताइए सबा, इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीदु, इसमें फेल मुजारे की निशानदेही करें, कौन सा कलीमा फेल मुजारे का है? यफ अलू। हम्म और इसके अलावा युरीदू। सही, ठीक है। युरीदु का माना क्या होगा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। युरीदु का माना क्या है?
मैं कह मैम रही आवाज ड्रॉप हो रही है आपकी। हूँ हाँ, युरीदू का माना क्या है? इसका मीनिंग नहीं पता। हाँ, युरीदू का माना है इरादा करना, ठीक है, इरादा करना। तो पीछे हमने पढ़ा था जी अरादल्लाहु, जी। अरादा मा, माजी था, युरीदू मुजारे। तो युरीदू का माना क्या होगा? युरीदु वो एक मर्द इरादा करता है या वो एक मर्द इरादा करेगा। सही, ठीक है, माशाअल्लाह। दूसरी आयत में बताइए, वन नज्म वशजरु यस्जुदानी, इसमें फेल मुजारे का कोई कलिमा, यस्जुदानी। कौन सा सीगा है ये? ये सीधा है हमारे पास तस्निया मुजक्कर गाइब। और फेल मुजारे, ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा आपका, जजाकिल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी मुंतहा बेटे, अगली आयत से आप बताइए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। युमिनूना है। शाबाश, और युकीमूना है। और और युनफिकून है। गुड, शाबाश। कौन से सीखे हैं ये तीनों ही? ये तीनों युमिनूना, अच्छा ये जमा मुज़क्कर गायब है। जमा मुज़क्कर गायब, गुड। अब ये लफ्ज है युनफिकून, अगर हमने बेटा इसका बनाना हो वाहिद मुज़क्कर गायब तो क्या बनेगा? युनफिकू। हम्म युनफिकू बनेगा। युनफिकूना क्या बनेगा इसका वाहिद मुज़क्कर गायब सी का? युनफिकू। युनफिकू, जबरदस्त। क्योंकि वाव नून तो जमा मुज़क्कर की अलामत है ना, ये हटा दिया तो असल सीगा हमारे पास आ गया, गुड। और इसका तस्निया मुज़क्कर गायब क्या बनेगा? युनफिकानी। युनफिकानी, ठीक है, माशाअल्लाह। देखा मुंतहा बेटे, मैं फेल माजी को आपने बहुत अच्छे से समझा था, तो आपको फेल मुजारे की जल्दी समझ आ गई है, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फजीद। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल है आप में से आज के सबक से मुताल्लिक तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर इजाजत दीजिए, काम लाजमी कीजिएगा, आपने भी ऐसी आयात तलाश करनी है, ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।